confirming the extradition of Tahir Rana, the 2611 mastermind. The NIA has stated that they have successfully secured Rana's extradition and that Rana exhausted all legal avenues, and the fact that it's the coordinated effort between the Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs and the NSG. This is the very first formal statement that has been released by the NIA. The National Investigation Agency has, of course, stated that they have successfully secured the extradition of Tahir Hussain Rana, the mastermind of the deadly 2611 Mumbai terror attacks, after years of sustained and concerted efforts to bring the key conspirator behind the 2008 mayhem to justice. Rana was being held in judicial custody in the United States pursuant to proceedings initiated under the India-US extradition treaty for his extradition. This finally comes through after Rana exhausted all legal avenues to stay the move. The District Court for the Central District of California had ordered his extradition on 16th May 2023. The NIA statement further says that Rana then filed multiple litigations in the Ninth Circuit Court of Appeals, all of which were rejected, and subsequently filed a petition for a writ of certiorari, 2 habeas petitions, and an emergency application before the U.S. Supreme Court, which were also denied. The extradition proceedings were initiated between the two countries after India eventually secured a surrender warrant for the wanted terrorists from the U.S. government. With the active assistance of the U.S. Department of Justice, U.S. Sky Marshal, NIA worked closely with other intelligence agencies, the NSG, and the Ministry of External Affairs and Home Affairs, coordinating with other relevant authorities in the U.S. to take the matter to its successful conclusion. They've also gone on to state that Rana is, of course, an accused. He's conspired with David Coleman Headley, alias Daud Gilani of the Lashkar-e-Toiba and Harkat-ul-Jihadi Islami. He is, of course, responsible for the deaths of a total of 166 persons who were killed and over 238 who were injured in the tragic terror attacks. My colleague Javed is joining us on the broadcast. Javed, you're at the Palam airport. We are, in fact, getting live visuals from Palam at this point. We're getting to know that there's going to be an armored vehicle that's going to take Rana to the NIA headquarters very soon. What's happening on the ground? Can you show our viewers what's transpiring there? देखिए, थोड़ी देर में तौर राना को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए यहां से पालम टेक्निकल एयर डिपार्टमेंट यहां से एयरपोर्ट से लेके निकलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए ने अभी जो अपनी रिलीज को एक जारी किया, जिसमें एनआईए ने बताया कि किस तरीके से तौर राना को लाने के लिए भारतीय जांच एजेंसी और भारत सरकार किस तरीके से काफ़ी मेहनत कर रही थी। इसमें सबसे ज़्यादा एनआईए ने बताया कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट, स्काई मार्शल, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां, एनएसजी, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय सब ने मिलकर साथ काम किया है। साथ ही एनआईए ने यह भी बताया कि किस तरीके से डेविड हेडली और दाऊद गिलानी और पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौबा और हरकत-उल-जिहाद इस्लामी यानी कि हुजी ने साथ मिलकर साल 2008 में मुंबई हमले की जो पूरी तरीके से साजिश रची थी। इसमें एनआईए की तरफ से 166 लोगों के बारे में बताया गया कि 166 लोगों की मौत हुई थी और 238 लोगों की जान गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनआईए की माने तो एनआईए ने अपने रिलीज में ये बताया कि किस तरीके से अमेरिकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरीके से अमेरिका की जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसी है, उसके अलावा यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट और खासतौर से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से परमिशन देने के बाद से तौर राना को लाना कितना बेहद आसान हो गया। और इसके बाद लगातार जो भारतीय एजेंसी एनआईए है वो लगातार कोशिश कर रही थी और देश की दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर देश की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि जो इंटरनल एजेंसी है सेंट्रल, उनके साथ मिलकर किस तरीके से एक लगातार कोऑर्डिनेशन कर रही थी। और आखिरकार आज 10 अप्रैल 2025 यानी कि गुरुवार के दिन तौर राना को लाने में भारत सरकार और देश की तमाम सेंट्रल एजेंसियां, गृह मंत्रालय, इसके अलावा विदेश मंत्रालय कामयाब हुआ है। और कुछ ही देर में देखिए यहां से तौर राना को लेकर जो है एजेंसी यहां से निकलेगी, पूरी सुरक्षा के बीच यहां से एजेंसी निकलेगी। और आपको हम बता दें कि यहां से कुछ ही देर में पूरी सुरक्षा के साथ सेंट्रल एजेंसी का जो हेडक्वार्टर एनआईए का वहां पर लेके जो है एजेंसी यहां से जाएगी और इसको दिल्ली पुलिस का पूरी तरीके से सुपरविजन
सुपरविजन करेगी और दिल्ली पुलिस की जो बटालियन है 3rd बटालियन और साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो स्वात कमांडो की जो टीम है वो इसके साथ तौर राना के इस पूरे काफिले के साथ जो तौर राना को लेकर निकलेगी उसके साथ मौजूद रहेगी और पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर इस वक्त अंदर मौजूद है और पूरा एक तरीके से जो रूट है वो तैयार कर लिया गया। और कल ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं एनआईए के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के पीछे का मकसद ये था कि आज यानी कि 10 तारीख को तौर राना जब भारत आएगा, भारत लाया जाएगा, उसके बाद उसको यहाँ से कैसे एनआईए के हेडक्वार्टर तक ले जाना है, क्योंकि तौर राना इस वक्त भारत सरकार का वो अकेला एक ऐसा चश्मदीद है इस वक्त अजमल कसाब के बाद जो 26/11 आतंकी हमले की जो पूरी जो कहानी है, जो पूरा राज है वो जानता है, क्योंकि इसमें अभी कई ऐसे और भी हैंडलर्स हैं। लश्कर तोयबा की बात करें या हूजी की बात करें, उनके हैंडलर्स को जानना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हरकतुल जिहादी इस्लामी है, इनके जो हैंडलर्स हैं वो इस वक्त भी भारत में कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। करीब 16 साल के बाद जिस तरीके से तौर राना की एक तलाश थी, आतंकी हमला जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था उसके बाद से, और किस तरीके से पूरी तरीके से साजिश रची गई और किस तरीके से इस पूरे टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया। इसमें किस तरीके से 10 जो आतंकी यहाँ पर अंदर आए थे उन्हें किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से उनको सपोर्ट किया गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया गया, किस तरीके से उनको एक रूट मैप बताया गया, कैसे उनको इनके जीपीएस सिस्टम को एक्टिवेट करके टारगेट जहां पर टारगेट को अंजाम देना था उस टारगेट को लोकेटेड किया गया। तो ऐसी कई चीजें हैं, क्योंकि एनआईए की एक लंबी तकरीबन 1000 पन्ने से ज़्यादा की जो चार्जशीट है, जो अब तक के इन्वेस्टिगेशन में एनआईए अपनी रिपोर्ट में जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक और उसके बाद साल 2019 साल 2020 में जिस तरीके से एनआईए लगातार मेहनत कर रही थी और 2019 में एक तरह से एनआईए की तरफ से यानी भारत सरकार की तरफ से एक पूरी रिपोर्ट दी गई थी अमेरिका को और अमेरिकन कोर्ट में भी सबमिट किया गया था कि बताया गया था कि किस तरीके से तौर राना भारत के लिए बेहद खास है और क्यों उसे भारत को प्रत्यार्पण करना चाहिए अमेरिका को। इस बारे में पूरी डिटेलिंग दी गई थी, एक एक मुंबई हमले को लेकर एक एक जानकारी दी गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साल 2020 में अस्थायी तौर पर उसे अरेस्ट करने की भी मांग की गई थी भारत सरकार की तरफ से और भारत की सेंट्रल एजेंसी ने भारत सरकार को तमाम वो दस्तावेज दिए थे। उसके बाद से लगातार जो है सेंट्रल एजेंसी इस कोशिश में थी कि किसी तरीके से तौर राना जो है वो भारत को सौंपा जा सके, लेकिन मामला अमेरिका से था। लेकिन जिस तरीके से साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए और उसकी अपील को खारिज करते हुए तौर राना के उन्होंने ये परमिशन दिया और ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन दी गई कि तौर राना का जो मामला है वो भारत में चलेगा। और यहीं से भारत की जीत की जो कहानी है वो शुरू हुई और कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसीज को इस बात की हिम्मत मिली कि अब वो दिन दूर नहीं है कि तौर राना को भारत नहीं लाया जा सकता। मतलब कहीं ना कहीं अब ये साफ हो गया कि तौर राना को भारत लाया जा सकता। और आज आप देख सकते हैं कि इस वक्त शाम के यहाँ पर 7 बज रहा है और लोगों में जो है काफ़ी आप हलचल देख सकती हैं इस स्क्रीन पे इस वक्त कि तमाम मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम प्रिंट मीडिया यहाँ पर इस वक्त मीडिया का जमावड़ा है और लोग बस अब इस सामने गेट की तरफ सबकी नज़र है और सब अब बस देखना चाहते हैं कि कितनी देर में जो है तौर राना यहाँ से निकलेगा, उसके बाद किस तरीके से तौर राना के खिलाफ जो तमाम मामले हैं, क्योंकि साल 2009 में एनआईए ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था यूएपीए के तहत, इसके अलावा 120B, 121 और तमाम दूसरे संगीन धाराओं में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो ऐसे में एजेंसी जो है उसका मेडिकल जो है वो हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद एजेंसी जो है हेडक्वार्टर के अंदर ही उसके मेडिकल को कराएगी और उसके बाद उसके जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिजिकली उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये फिलहाल अभी जो एजेंसीज जो डीजी हैं एनआईए और जो बाकी जो अधिकारी, जो 7 लोगों की टीम गई थी जो इस जांच को पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं एक मीटिंग होनी या एक मुलाकात होनी, क्योंकि जो 7 लोगों की टीम जो गई थी तौर राना को लाने के लिए, उनकी मुलाकात अभी अपने बाकी सीनियर अधिकारियों से नहीं हुई है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से वो तौर राना को लेकर अब इस वक्त पहुंचे हैं और यहाँ से निकलेंगे, एनआईए वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद उनको मुबारकबाद भी दी जाएगी उन 7 लोगों की टीमों को जो वहाँ पर
पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके प्रत्यार्पण को, क्योंकि सोर्सेज का कहना था कि 2 दिन का समय लगेगा। और आपको बता दें कि 24 मार्च को सबसे पहले इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स ने ये बताया था कि जो 7 लोगों की टीम है वो अमेरिका जाने वाली है, जल्द अमेरिका जाने वाली है। जो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। और आज 10 अप्रैल को जो ये बात बिल्कुल सच हुई और भारतीय एजेंसी एनआईए जो है 7 लोगों की, जिसको एडीजी रैंक के अधिकारी, आईजी और जो एसपी और एएसपी रैंक के 7 अधिकारी जो एनआईए के वो लीड कर रहे थे, इस पूरी टीम आज लौटी है। और अब कुछ ही देर में तौर राना को लेकर यहां से एनआईए पहुंचेगी। उसके बाद उससे अब फिलहाल आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि अब तौर राना को जो अभी थोड़ा समय लग रहा है, उसके पीछे की वजह यह है कि टेक्निकली अब तारीख तौर पे जब कोई वांटेड आतंकी अपराधी किसी दूसरे कंट्री से जब अब उस कंट्री में आता है जहां पे उसके खिलाफ मामला चल रहा होता है, तो उसको अरेस्ट करते हैं, औपचारिक तौर पे गिरफ्तारी दिखाई जाती है। उसको बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये मामला है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब जो है औपचारिकता जो है वो थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। उसके बाद तौर राना को लेकर यहां से एनआईए दिल्ली पुलिस की सुपरविजन में निकलेगी, पूरी सुरक्षा के बीच निकलेगी। उसके बाद आज की रात के बाद से तौर राना की हर एक वो रात उन 16 साल के जो एक लंबी कड़ी मेहनत के बाद, एक लंबी जांच के बाद कहीं ना कहीं अब वो उसको सामना करने वाला है। एनआईए के कई ऐसे सवाल हैं, देश की सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियों की कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब तौर राना को देना है। और कई ऐसे राज का जो पर्दाफाश होगा जो यहाँ पर हुजी, लश्कर तौयबा और तमाम वो छोटे आतंकी संगठन जो अब कहीं ना कहीं हाल ही में के दिनों में, अगर हम बात करें, जो एनआईए ने भी खुलासा किया है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, सर्च ऑपरेशन में, कि कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे से अब कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में और अब कौन कौन लोग हैं जो उस वक्त 26/11 के आतंकी हमले में जो है डेविड हेडली और तौर राना और लश्कर तौयबा के हाफिज सईद और बाकी आतंकियों के साथ शामिल थे और हिंदुस्तान में रहकर हैंडलर के तौर पर काम कर रहे थे। जी Javed, thank you so much for joining us live this evening. Of course, we'll come back to you over the course of the day. We are, of course, awaiting the convoy to come out. There's been a lot of technical process has been happening till now. Stay tuned for more on NewsX.